अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं। Please be seated. Secretary General, please start the session. Good morning, everyone. Now the new member, please be ready to take oath or affirmation. Honorable Speaker, sir, the member is Srimati Deepika Adhikari, who stands selected from Khaitan constituency of West Bengal, will now take the oath in Bengali. Srimati Deepika Adhikari, please. আমি দীপিকা অধিকারী যুব সংসদের নিম্নকক্ষের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করতে আমি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস ও আনুগত্য রাখি এবং আমি এই সংবিধানকে অবাধ রাখি। আমার দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং আমি যে দায়িত্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছি তা আমি বিশ্বস্ততার সাথে পালন করব। Good morning to all members. Those who are present. Good morning. Now, the leader of the house will say a few words in the start of the session. आज इस सदन की शुरुआत करते हुए मैं जिन बातों का उल्लेख न किए बिना रह पा रहा मैं भारत के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रगति के बारे में बोलना चाहूँगा। आज भारत पश्चिमी देशों द्वारा पिछड़े हुए देशों के तालिका में नहीं गिना जाता, बल्कि भारत को अभी पश्चिमी समाज उन्नति, आधुनिकता एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिख रहे हैं। और আমাদের সারা কোথায়? मुद्दा यही है आज আরে ওটা আওয়াজ হয় না তো। युवा समाज आज भारत के युवा समाज রাজুদা শপথ গ্রহণের হ্যাঁ বলতো শপথ গ্রহণের মাইকে সাউন্ড বার হচ্ছে না কেন? जैसे सवाल रहे हैं वो देख के मेरा छाती गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्योंकि आज भारत G20 जैसे बड़े समिट को भी इतनी अच्छी तरह से अध्यक्षता कर रहा है कि सारी दुनिया अब हैरान है और सारी दुनिया अभी भारत के सफलता को स्वीकार कर रहा है। শপথ গ্রহণের মাইকটা একটু টেচ করতে और इसके अलावा ওটা সাউন্ড भारत अब इतनी बड़ी छलांग लगाकर सारे दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि आज भारत ने यूएसए और चाइना जैसे बड़े इकोनॉमिक पावर को जीडीपी ग्रोथ में पिछड़कर सारी दुनिया में इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ में अपनी सफलता को ले आई है कि सारे दुनिया हैरान है। और सारे अखबार हो, वो लोकल खबरें हो या वो ग्लोबल मीडिया, सब आज भारत की वाहवाही कर रहे हैं। और अगर इसी तरह हमारा देश आगे बढ़ता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि भारत बहुत जल्द दुनिया में तीसरा और उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मुझे पता है ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन
मुझे सदन के सभी सदस्यों की सहायता की आवश्यकता होगी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और साथियों याद रखना, আর মাইকে साथियों याद মাইকে আওয়াজ বার হচ্ছে रखना, না। जब हौसला रखा है दूसरी उड़ान का, जब हौसला रखा है दूसरी उड़ान का, तब कर क्यों ना अपने इस आसमान का। धन्यवाद। धन्यवाद। The leader of the opposition will say few words. জল খাবে জল অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি দেশের মূল লক্ষ্যই হওয়া উচিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং সেই দেশের সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব দেশের সার্বিক উন্নতি ও সফলতা। আর সেই উন্নতি শুধুমাত্র একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উন্নতির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা প্রতিফলিত হয় দেশের সকল জনগণের সার্বিকভাবে উন্নয়নের মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমান সরকারের যে এই নীতি চূড়ান্ত বিরোধী তা তাদের এই জনবিরোধী কার্যক্রমের দ্বারা স্পষ্ট। আর যতদূর তাদের সাহায্যে অবশ্যই আমরা সাহায্য করব, তবে কাজগুলো সাহায্যপূর্বকভাবে পাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় দেশকে ডুবা সভা বললে মাথায় আমার বোতলটা নিয়ে সবাই জল খাবে। কিন্তু যেই দেশের সরকারের যুবকদের চাকরি দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই, সেই দেশের সরকারের শিক্ষিত যুব সমাজ দেশ সাজানোর সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার নিঃসন্দেহে বহু নীতি প্রণয়ন করেছে, কিন্তু সেই সব নীতির কার্যক্ষমতা ক্ষমতাহীন কার্যসরণ। আর যদি দেশের সরকারের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিশ্চিত হতো, তাহলে বিরোধীরাও বিরোধ করার আগে 10 বার ভাবনা চিন্তা করতে। আমি আশা করব সরকার যাতে সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থের বদলে সামগ্রিক স্বার্থে মনোনিয়োগ করুক এবং ভারতকে স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশে আত্মপ্রকাশ করার পথ প্রশস্ত করুক। আমি আমার বক্তব্য দুইটি লাইনের মাধ্যমে শেষ করতে চাই। ये देश है परिवार मेरा, भाई है विभिन्न धर्म से। ये देश है परिवार मेरा, भाई है विभिन्न धर्म से। इस माटी से है जन्म मेरा और नाम लिखेंगे कर्म। Thank you. Now the members be ready for the question hour. Question hour starts. Question number 289. Miss Arpita Sinha, please. धन्यवाद स्पीकर सर। आपने देखा ही होगा, हाल ही में हमारे आदरणीय अर्थमंत्री सरकार ने एक बजट पेश किया जिनसे देश की हर जनता को चिंता में डाल दिया। वही जानना चाहते हैं क्या ये अर्थमंथन वाकई में सही हाथ से हुआ है, क्योंकि इतने बड़ी बजट का कुल 13% जो कि लगभग 6,21,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए में है। अब सोचिए महोदय, वैसे भी हमारे देश दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली प्रतिरक्षा क्षमता में है और भारत में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो तो कई देश सोच भी नहीं सकती। मैं पूछना चाहती हूँ, इस देश की नौजवान कहा जाएगा जो सड़कों पे बैठे हैं हाथ में हाथ थाम के, ताकि उनके जिंदगी में एक नौकरी मिल जाए, उनके जिंदगी की इस अंधेरे में एक दिया जल जाए। मैं पूछती हूँ कि देश इस तरह से कहा जाएगा वो किसान जो दिल्ली की सड़कों पे आज बैठे हैं, वही जो खेतों को घर से भी ज्यादा वक्त देते थे। Concerned Minister, please. ধন্যবাদ স্পিকার স্যার। আমি এটি অবশ্যই স্বীকার করছি যে একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সাপেক্ষে অর্থের অঙ্কটি বেশি বলে মনে হতেই পারে, তবে দেশ ও দেশের নাগরিকের সার্বিক সুরক্ষাকে মাথায় রেখে এটি খুবই নগণ্য। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দ্বারা পেশ করা সাম্প্রতিক বাজেটে আমি কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। আর আপনি যদি একটু নজর দেন তাহলে আপনিও বুঝতে পারবেন দেশের একটি টাকাও কোনো ভ্রান্ত খাতে যাচ্ছে না। আর এটি আমি দায়িত্ব সহকারে বলতে পারি। আর ওয়ার্সিপিক বলতে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? আমাদের দেশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় চতুর্থতম একদিনেই হয়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে আমাদের 140 কোটি ভারতীয় দেশভক্তি ও আমাদের সৈন্য জওয়ানদের আত্মবলিদান, যা আমরা এভাবে বিফল হতে দিতে পারি না। আর আমাদের সাম্প্রতিক পেশ করা বাজেটে আমরা সব বিচার বিবেচনা করেই ঠিক করেছি।
পশ্চিমী দুনিয়ার উন্নত দেশগুলির সাথে আধুনিক অস্ত্রের সামঞ্জস্য রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাড়তে থাকা টেনশনকে দেশকে যাতে চিন্তা করতে না হয় পরবর্তীকালে, এর জন্যই আমাদের এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। ধন্যবাদ স্পিকার স্যার। Answer please. Question number 290, Mr. Raj Gupta. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज के हमारे समय में लड़कियां कितनी आगे आ चुकी है। नो डाउट हमारे देश की सरकार लड़कियों के लिए बहुत कुछ सोच रही है, बहुत तरीके की स्कीमें लाई जा रही है, लेकिन आज भी क्या लड़कियां सेफ है? स्कूल, कॉलेज, रास्तों में आज भी कितनी तरह की फिजिकल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, ऐसी डाटा की कितनी खबरें आपको दिखाई दे रही है। इसको लेकर क्या कहेगी आपकी सरकार? I just want to know what kind of initiative has government taken for our women's safety? बताइए क्या कर रहे हैं आपकी सरकार? सीधा बोलो क्या कर रही है आपकी सरकार? शांत रहिए आप। থ্যাংক ইউ স্পিকার স্যার। সরকারের কঠোরভাবে লওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে মাতৃসকলৰ তথা সমাজৰ ছোৱালীসকলৰ ভূমিকা বিশেষভাৱে পৰিৱৰ্তনৰ পৰিলক্ষিত কৰা যাচ্ছে। আৰু বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিরোধী বন্ধু আপনার নেগেটিভ চশমাটি এড়াই সহ বহুত পজিটিভ নিউজ হবে ভাবছি। সরকারের তরফ থেকে লওয়া বিভিন্ন প্রকল্প যেমন ওমেন হাব, ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেল, ওমেন হেল্পলাইন নামে আরো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। सरकार बोल जरूर रही है कि वो लड़कियों के साथ है, लेकिन जब माहौल गर्म रहता है तब क्या करती है आपकी सरकार? जब मणिपुर में इतना निंदाजनक हादसा हुआ, उसका क्या थी आपकी सरकार? पार्टी के मेंबरों ने बेचारी बच्ची के साथ इतना घिनौनाजनक हादसा किया, उसका क्या थी आपकी सरकार? चलिए मान लेता है कि सरकार स्टेप ले रही है, फिर इतना वक्त क्यों लगता है? क्यों कोई इमीडिएट एक्शन नहीं मिलता? क्या राजनीति हमारी बेटियों की इज्जत से भी बड़ा है? आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। বিরোধী বন্ধুর 7 মাস আগত আপনি কইতে বলি লাগি আছে। সরকারের তরফ থেকে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছিল, আপনারা সেটা করতে দেখেন। আরো ইহা শাস্তি ব্যবস্থা করা হইতাছে। তখন বিস্কুট দেবে একপাক্ষিক বিচার করিলেই কি হইব? আদালত একপাক্ষিক বিচার করে না, আদালত নিরপেক্ষ। Thank you. Question number 291, Mr. Pritam Tripathi. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे सम्मानीय भारतीय सरकार ने काफी काले कानून लाए, काले कृषि कानून से लेकर एनआरसी तक। आज इन धर्म के ठेकेदारों ने, आज हमारे धर्म के ठेकेदारों ने एक नए हथियार को चुना है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न जिसके द्वारा मैं अपनी और पूरे देश की जनता की आवाज को संसद के कानों तक पहुंचाना चाहूंगा कि क्या जहां हमारे संविधान ने विश्व के सबसे बड़े संविधान ने हर धर्म और धर्म के अधिकारों को संजोया है, सम्मान दिया है, वहां इस बार एक कलम के द्वारा कलम लगाया जा रहा है। Concerned Minister. आज रुकिए और है, आज क्या हमारे संविधान पर, हमारे पवित्र समान संविधान पर बार बार आक्रमण करना जरूरी है? क्या हमारे पावन भारतीय संस्कृति जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है, उससे खिलवाड़ करना जरूरी है? क्या हमारी एकता, अखंडता, विभिन्नता का गला घोटना जरूरी है? क्या यूनिटी जरूरी है? बताइए। और मेरा दूसरा प्रश्न, क्या यही वो एकता है? क्या यही वो एकता है जिसने अंग्रेजों को मार भगाया, जो जिन्होंने हमें 207 राज्य किया, उनको मार भगाया? आज ये सरकार एकता को मिटाना चाहती है। आज ये धरती, ये जमाना, ये जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, ये सरकार सुधार नहीं, खिलवाड़ जानती है, सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ जानती है। आक्रमण कर रहा है, आज चौकीदार जी चोरों को छोड़ घर वालों पर आक्रमण कर रहा है। मैं सबको बताना चाहूंगा कि
ये नियम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ताकि हिंदू और मुसलमान एक ना होकर सरकार के खिलाफ ना लड़े, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ना लड़े। क्या आज हमारे चौकीदार साहब, महान चौकीदार साहब, क्या ब्रिटिश राज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, राजधर्म को अपनाए बगैर? भले इस सरकार के नाम में भारतीय हो, लेकिन ये सरकार ब्रिटिश के नक्शे कदम को बरकरार रखने वाली भी है और रहेगी। Concerned Minister, please. থ্যাংক ইউ স্পিকার স্যার। আমি আপনার দ্বারা আমার বিরোধী পক্ষকে বলতে চাই, আপনি ইউসিসি সম্পর্কে প্রশ্ন করার আগে আপনি ভালো করে জেনে আসুন, কারণ আমাদের ইউসিসিতে বলা হয়েছে সর্বধর্মকে সমানভাবে দেখা হবে এবং আমাদের ইউসিসির মধ্যে বলা হয়েছে সর্বধর্মকে সমানভাবে দেখা হবে। আমাদের ইউসিসি এর জন্যই আনা হয়েছে যাতে ভারতের লোক সমাজবদ্ধভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে একভাবে থাকতে পারে, সংবিধান মেনে চলতে পারে। আর আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন অনুযায়ী যে বলছেন ব্রিটিশ রাজে আমরা আছি, সেটা নয়, কারণ ব্রিটিশরা যখন ছিল তখন তারা মুসলমান ও হিন্দুকে ভাগ করেছিল, কিন্তু আমাদের ইউসিসিতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে কি আপনারা সর্বধর্মকে সমানভাবে দেখা হবে এবং সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকবে। এটাই আমাদের ইউসিসি। এটা 21 শতাব্দীর ভারত হয়, নতুন ভারত হয়। এখানে কোনো ব্রিটিশ আনা হচ্ছে না, এটা নতুন ভারত। वो हाथी के दांत सबको खाने का दिख रहा है। आप उनको बोलने दीजिए प्लीज। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 292 मिस कौर। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 2020 ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ 400 ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ आखिर जब सरकार ने भले ही वो बिल वापस कर लिए, लेकिन वो बिल वापस करने लेने वाले किसी नहीं गए, इस बड़ी बार बढ़ पाए इसकी जाकर जो अजय तक नहीं दी गई। अरे उनके परिवार ने लेनी होगी। आप शांत रहिए। वादे नहीं पूरे कर लिया, फिर झूठे सत्य दिखाएगा। मिनिस्टर प्लीज। माननीय स्पीकर महोदय, आज से ठीक 2 साल पहले हमारी सरकार ने जो 3 बिल पास किए थे वो हमें वापस दे दी। हमें बहुत दुख है कि हम किसानों को एमएसपी की महत्वता नहीं समझा, नहीं समझा। अगर किसी परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिलता है तो हमें उस बात पे गौर करनी चाहिए। जिस सरकार इतनी जिम्मेदार था, फिर किसानों को क्यों बार-बार उसके लिए धरने लाने पड़े हैं? इंडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री फिर क्यों बार-बार किसानों को अपनी गल के हाथ रोकिया जाता? उन्हें क्यों बोलने को रोकिया जाता? क्यों किसानों को बार-बार आतंकवादी कहकर बदनाम किया जाता? क्यों बार-बार उनको आतंकवादी कहकर बदनाम किया जा रहा है? अब क्यों बोल रहे हैं कि उनके बिना हमारा खाना बंद हो जाता है? हम कभी भी ये नहीं कह रहे हमारे देश के किसान आतंकवादी आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ थे हैं और भविष्य में भी रहे। कुछ लोग हम शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। मैं विरोधियों को बोलना चाहता हूँ कि वो शांति बनाए रखे और हमें हमारे तरह काम करने। मेरा एक आखिरी सवाल पीएम सर ने पिछले 2 साल पहला कहा कि हम एमएसपी के बारे में सोचेंगे, जब मैंने लगता वो अभी भी सोच ही रहे। वो गवर्नमेंट कहते भी नहीं है कि वो कुछ इतनी बड़ी मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो भूल गए किसान सारे देश के बहुत बड़ी हिस्सा है। किसान के बिना हमारे देश की आर्थिक नीति टूट चुकी। वो बिना इतनी बड़ी गल को भूल रहे हैं। मैं बस यही सवाल उसकी कागज लागू होगी कितनी देर और लग रहे 2 साल तो 4 साल कैसे रह करके लागू है कि लागू है कि नहीं जे मैं बड़ी पट्टी करती हूं एसपी तो शेती किसाना ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ मुद्दे की खत्म होता जावे कारण हमारे विरोधी मित्रों को शायद अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कम है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है।
और रही बात एमएसपी की, तो आप थोड़ा सब्र रखिए, नतीजा जल्द मिलेगा। और इंतजार आप शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 293, मिस लीजा साहब। Thank you, Speaker. Sir, India has just held one of the most international economic forum G20, which is undoubtedly a commendable act. But does the government know that to be commendable, it has to take down the board? Government says the G20 is not a forum for political discussion, but rather for discussion is economic, finance, and life. However, sir, I would like to question Mr. Honorable Prime Minister. Firstly, how did the government spend more than 4,100 crore Indian rupees on this summit despite so many financial problems in our country? Where the government really had the capital to provide the all jobs. What excuse will the government give for this expenditure, or is it also not a political discussion of government? Secondly, in this summit, where countries like Bangladesh and Singapore were invited, what was exactly the reason for the absence of influential countries like Russia and China? रशिया और चाइना का प्रतिनिधि आए थे। आप बोले दीजिए। Finally, my question is, was this conference a success? Did India's national interest get precedence, or by increasing complexity and sensitivity to this extent, has the summit remained merely an aspiration without a large international convention? Honorable Prime Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है हमारे विरोधी दल में हमारी बुराई ढूंढने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें आजकल अखबार पढ़ने का समय भी नहीं मिलता। आप उनको बोलने दीजिए। बताइए। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि G20 वो समिट है या फिर वो ग्रुप है जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया की 2/3 आबादी तथा पूरी विश्व की 85% अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की 75% आता है, जो कि इस बार भारत ने G20 समिट को अध्यक्षता दिया है और भारत की अध्यक्षता में G20 ने शिखर को छुआ है। बढ़ सके शिखर को इस बार छुआ है G20 ने। मैं कहना चाहूँगा G20 के सफलता को पूरी दुनिया वर्णन कर रही है, चाहे लोकल खबरें हो या फिर चाहे ग्लोबल मीडिया, क्योंकि आखिर भारत ने इस बार काम भी वैसा ही किया है। अब बोलना चाहूंगा मुद्दे को लेकर कि इस बार G20 का मूल मंत्र था वसुंधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा विश्व एक परिवार है और भारत की अध्यक्षता में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के नारे पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। आज भारत ने पूरी दुनिया को एकजुट कर विश्व स्तर पे अपनी उन्नति एवं स्तर पर उन्नति एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बुखार लगाई है। इस बार मूल उद्देश्य यही था कि कैसे वैश्विक स्तर पे विज्ञान की उन्नति तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य एवं उसके दूसरी ओर प्रकृति माँ के प्रति अपने कर्तव्य को पालन किया जाए और जिसमें भारत पूरी तरह से सफल हुई है। मैं अपने विरोधियों को बोलना चाहूँगा कि भारत के अध्यक्षता में G20 को पूरी दुनिया में संवारा जा रहा है और इसको बोलने के लिए मुझे
अलग से उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। G20 के मुहूर्त के दौरान अगर उल्लेख किया जाए भारत के और की तरफ, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो तुरंत नहीं, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में भारत में दिखेंगी। भारत में अर्थनीति की एक छलांग आएगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, वाणिज्य हो, पर्यटन हो या फिर हो। आप उसको बोलने दीजिए, आपको लास्ट वार्निंग बताइए। और चाहे वो कर्म संस्थान हो, हर जगह पर एक छलांग ऊंचाई दिखेगी, सबको दिखेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि भारत अदूर भविष्य में विश्व गुरु स्वरूप उभर उठेगी, क्योंकि हमारा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Members, before I adjourn the house, please stand. We start the national anthem. Please member be seated. Members, now I adjourn the house. We meet tomorrow at 11 o'clock. Thank you.